بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ سمجھے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور کسی جان کو یہ طاقت نہیں ہے، کسی جان کو یہ طاقت اجازت نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر مر جائے۔ کتابًا مؤجلا، ہر شخص کا کیا ہے؟ وقت مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو۔ سمجھے؟ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو گے پھر بھی تمہیں موت آ پکڑے گی۔ اور بھی ایک جگہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت کی جس سے تم لوگ بھاگ رہے ہو نا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو موت تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر موت کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے؟ تمہاری روح کو، یعنی تم کو ظاہر اور چھپے ہر چیز کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ چھپے اور ظاہر سب کو تو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یعنی تم موت سے کتنا بھی بچنے کی کوشش کرو تو بچ نہیں سکتے ہو۔ سمجھے؟ موت سے بچ نہیں سکتے ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ سب کا وقت مقرر ہے، جب موت آ جائے گی تو پھر نہ ایک منٹ زیادہ زندہ رہ سکتے ہو اور نہ ایک منٹ پہلے مر سکتے ہو۔ سب کا وقت مقرر ہے، کتابًا مؤجلا، ٹھیک ہے؟ اور موت کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کو موت آنے تک، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے مرنے والے کی، دور تک فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے، یعنی جو فرشتے آتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، ٹھیک؟ تو جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، مسلمان انہیں دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، ٹھیک؟ خوش ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی دنیا میں کیے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے دین کو انکار کیے رہتے ہیں، تو ان کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈرنے لگتے ہیں، چیخنے اور چلانے لگتے ہیں اسی وقت سے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر بغیر دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ سمجھے کچھ؟ ارے جب فرشتے کو دیکھیں گے تو ہر کوئی تو دیکھ لے گا کہ یہ فرشتے ہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جو کافر ہوگا نا، جو مسلمان نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کو بھی کیا ہوگا؟ اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے گا، تب وہ کلمہ پڑھے گا، تب وہ ایمان لائے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، یعنی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو اس نے نشانیاں دیکھ لی ہے، اب تو اس نے نشانیاں دیکھ لی ہے۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ بغیر دیکھے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا نام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو لوگ
बगैर देखे ईमान ले आते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी, जो लोग बगैर देखे ईमान ले आते हैं, व यक़ीमूना अस्सलाता, और नमाज कायम रखते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला फरमाता है जो रिज़्क़ हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही अपने रब की तरफ से क्या हैं, हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और वही लोग कामयाब हैं। तो बगैर देखे ईमान लाने का नाम है, बगैर देखे ईमान लाने का नाम ईमान है। जब देखकर ला रहे हो तब ईमान काबिले कबूल नहीं। ऐसे तो होता है ना, कोई चीज हम लोग कहते हैं, कोई निशान मतलब कोई होता है, कुछ कोई बात होती है तो कहते हैं कि अगर हम साबित कर दिए तो, अगर हम साबित कर दिए तो उस पर अपनी शर्त भी तो रखते हैं। ऐसे ही क़यामत से पहले जब लोग इस्लाम को झूठा कहेंगे ना, तो इस्लाम की सच्चाई क्या है कि सूरज पश्चिम से एक बार निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा क़यामत से पहले। जब इस्लाम को लोग मानेंगे नहीं तो उस वक्त सबसे बड़ी निशानी क्या जाहिर होगी, सबसे बड़ी निशानी ये जाहिर होगी कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा ना, लोग इतनी बड़ी इस्लाम की निशानी को देख लेंगे ना, तो फिर तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी निशानी देख ली है। अब ईमान ला रहे हो तो अब जाओ, अब तुम्हारे ईमान की जरूरत नहीं है। तुम तो इस्लाम की सच्चाई को पहले ही देखकर, इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर ईमान ले आते, तब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल होता। ठीक, इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर पहले ही इस्लाम कबूल कर लेते, तब तो इस्लाम तुम्हारा कबूल किया जाता। लेकिन अब तुम इतने बड़ी निशानी को देख रहे हो कि सूरज ही पश्चिम से निकल आया, जबकि सूरज कहाँ से निकलता है रोज? पूरब से निकलता है। अब पश्चिम से निकल आया, तो इतनी बड़ी निशानी जो मुसलमानों को पहले से मालूम है और मुसलमानों के अलावा किसी और को नहीं मालूम है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो इतनी बड़ी निशानी देखकर अब ईमान ला रहे हो तो ईमान कबूल नहीं होगा, तौबा भी कबूल नहीं होगा, तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही जब मौत के वक्त कोई काफिर ईमान ले आता है ना, तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं, क्योंकि जब वो दुनिया में था, बाहयात था, मौत नहीं आई थी, तो इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर ईमान ले आता, उसका ईमान काबिल कबूल हो जाता। ठीक, अब इस्लाम की अच्छाइयाँ क्या है? कोई अगर मुताला करे अच्छे से तो उसको अच्छाइयाँ मालूम होंगी ना। लेकिन क्या होता है, लोग इधर उधर अफवाहों पे, चौराहे पे लोग मोबाइल में सुनकर इस्लाम को बुरा जानने लगे हैं। आज अफवाहों पे भरोसा किए हैं तो उसकी भी सजा नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम को सही तरीके से सही जगह जाके सीखते तो उन्हें मालूम होता है इस्लाम में कहीं भी किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। ठीक, लेकिन वो क्या चौराहे पे सुनकर किसी मुसलमान को देखकर इस्लाम को फैसला करते हैं। देखो इस्लाम क्या है, मुसलमान दोनों अलग अलग है ना। इस्लाम एक कानून है और मुसलमान तो इंसान, अच्छे भी मुसलमान हो सकते हैं, बुरे भी मुसलमान हो सकते हैं। तो मुसलमान तो इस्लाम नहीं है ना। तो कुछ लोग मुसलमानों को देखकर इस्लाम का फैसला करने लगते हैं कि यही मुसलमान है, यही इस्लाम है। तो कोई इंसान इस्लाम नहीं है, कोई मुसलमान इस्लाम नहीं है। ठीक, जो कलमा पढ़ेगा मुसलमान होगा, लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले बुराई भी तो कर सकता है, गुनाह कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, ज़िना भी उससे हो सकता है, कोई भी उससे गुनाह हो सकता है, क्योंकि वो इंसान है। ठीक, तो वो इस्लाम नहीं है। उसको देखकर कोई कहे कि इस्लाम बुरा है, तो उसकी बेवकूफ़ी है कि नहीं? उसकी बेवकूफ़ी है ना। तो इस्लाम एक कानून है, इस्लाम में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। और जो लोग मुसलमानों को इस्लाम समझ लेते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं। वो लोग इस्लाम और मुसलमान में आज तक फर्क ही नहीं समझ पाए। ठीक है, तो आगे देखो क्या है। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। काफिरों की जब मौत आती है ना, तो अजाब के फरिश्ते आते हैं और बड़ी सख्ती करते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, और जब अगर तुम जालिमों को देखो, यानी जो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, यानी ईमान न लाकर जो गुमराह हैं, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, अगर तुम जालिमों को देखो फ़ी ग़मरातिल मौती, जब वो मौत की सख्तियों में होते हैं, जब उन्हें मौत आती है,
वल-मलाइकतु बासितु ऐदिहिम, और फरिश्ते जो आए रहते हैं ना ऐसे हाथ फैलाए रहते हैं, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान। फरिश्ते क्या कहते हैं? निकालो अपनी जान। मौत के फरिश्ते आए रहते हैं, कहते हैं निकालो अपनी जान। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। किस चीज का अजाब? जिल्लत का अजाब, रुसवाई वाला अजाब। बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि, उसी का बदला जो तुम अल्लाह ताला पर बुरी बात कहा करते थे, यानी अल्लाह ताला को जो नहीं मानते थे, ठीक। व कुंतुम अन आयातिहि तस्तकबिरून, और अल्लाह ताला की आयतों से इनकार किया करते थे, तकब्बुर किया करते थे। अल्लाह ताला की आयतों यानी कुरान को नहीं मानते थे, और कुरान की आयतों से क्या तकब्बुर घमंड करते थे। हाँ, कुरान को आज बहुत सारे लोग बुरा कहने वाले हैं ना, तो उनका हाल यही होगा। फरिश्ते कहेंगे निकालो अपनी जान, आज तुम्हें हम जिल्लत वाला अजाब देंगे, यानी रुसवाई वाला, ऐसा अजाब जिसमें बेइज्जती भरपूर होगी, समझे। तो ऐसा होता है मौत के वक्त, ठीक। और काफिरों की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है, और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। हाँ, मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर पैदा नहीं होती। और अच्छा, जब मौत आती है काफिरों की ना, तो फरिश्ते आते हैं चेहरों पर और मुंहों पे मारते हैं, चेहरों पर और मुंह पर मारते हुए ले जाते हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, और अगर तुम देखो वो लोग जो काफिर है, जब उनकी मौत आती है, फरिश्ते जब उनकी रूह निकालने आते हैं, यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, तो कोड़े से ना उनके चेहरे पे मारते हैं और उसके पीठ पे मारते हैं। काफिरों के चेहरों पे ऐसे मारते हैं, ऐसे सीधे चेहरे पे अगर कोई मारे कितना बुरा लगता है। तो फरिश्ते सीधे चेहरे पे मारते हैं और पीठ पे मार, दोनों तरफ से मारते हुए उसकी रूह निकालते हैं और मारते हुए हाँकते हुए उसको जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, समझे। ऐसी सख्ती होती है मौत के वक्त, तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त अजाब होता है उनके साथ, बड़ी सख्ती होती है। तो बेहतर यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ, है ना, ताकि आखिरत में हमारे साथ आसानी हो। आखिर हमेशा दुनिया में रहने के लिए आए हो क्या? नहीं ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, तो मौत तो आके रहेगी। और मौत के बाद क्या होगा उससे डरो, मौत के बाद क्या होगा उससे डरो। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन जरा सोचो मौत के बाद वो जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत लंबी, कभी खत्म होने वाली नहीं है, उस जिंदगी से डरो, ठीक। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलमे बरज़ख में रहती है। ये जो कहते हैं ना कि मरने के बाद हाँ अगले जन्म में मैं इंसान नहीं बनूंगा, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन इंसान नहीं बनूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम तो वही अगले जन्म में भगवान से ही कहेंगे कि हम कुत्ता बिल्ली बन जाए, लेकिन इंसान नहीं बने, ठीक। तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी है। इंसान एक ही बार पैदा हुआ, दोबारा कभी भी वो पैदा नहीं हो सकता। वो आलमे बरज़ख में था, ऐसा नहीं कि ये पहली मरतबा आया है। मतलब इसकी रूह, इंसानों की रूह कहाँ थी? आलमे बरज़ख में पहले से थी, फिर अपने माँ के शिकम में आया, फिर वहाँ से दुनिया में पैदा हुआ, बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बुढ़ा हो जाता है, आदमी मर जाता है, फिर मरने के बाद कहाँ जाता है? आलमे बरज़ख में वो रहता है, मर के बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक। क़यामत के दिन फिर एक मैदान कायम किया जाएगा, क़यामत का महशर का मैदान, वहाँ पे सब लोग जमा होंगे, वहाँ पे हिसाब किताब होगा, फिर जिसके जैसे अमाल होंगे फिर वो जन्नत और दोज़ख में इसी हिसाब से जाएंगे, समझे। अच्छा ये बताओ, दुनिया में इतने इंसान हैं, अरबों खरब इंसान है ना, 7 अरब करीब इंसान है दुनिया में। बताओ हर इंसान एक दूसरे से अलग है कि नहीं? है ना। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, बाकी सब लोग अलग हैं। तो बताओ जो खुदा 7 अरब इंसान पैदा कर सकता है, तो क्या फिर और इससे ज्यादा नहीं पैदा कर सकता है? क्या वो मोहताज है कि उसको रूह की कमी पड़ गई है कि हमारा रूह फिर से जानवरों में डाल दे? अच्छा हम जिंदा हैं तो जानवर भी तो इतने हजारों करोड़ हैं, है ना। तो रूह की कमी थोड़ी ना है। और रब जानता है उसके पास कितनी रूहें हैं, रब जानता है, रूहों की कमी थोड़ी ना है कि दूसरे जिस्म में फिर से इसी रूह को डाला जाए, ऐसा नहीं है। जो एक मर्तबा आ गया अपनी रूह के साथ, अपने जिस्म के साथ जाएगा दुनिया से, फिर अपनी रूह और अपने जिस्म के साथ वही इंसान उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इंसान जो है फिर दूसरे जिस्म में चला जाए। इस तरह से तो पता चलेगा कि कई रूह एक ही जिस्म से उठेंगे, हैं? कई रूह एक ही जिस्म से उठेंगे, फिर
पता चला कोई भैंस थी, फिर कोई मरा, फिर भैंस की शक्ल में आया। है ना। एक इंसान ऐसे मुझसे कह रहा था कि अगले जन्म में हम तो कुत्ता बिल्ली बन जाएं, लेकिन हम तो तमन्ना करते हैं कि हम इंसान ना बने। है ना, कुत्ता बिल्ली बन जाए, लेकिन अरे भाई इंसान बनने में तुम्हें क्या बुराई है? इंसान तो अशरफुल मखलूकात है ना। अल्लाह ताला इंसान को क्या दिया? अक्ल, सोच, वो शऊर दिया है। क्या देखो, इंसान अपने अक्ल का इस्तेमाल करके तो राकेट उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। सालों का सफर 1 घंटे में सफर करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं? तो अपने दिमाग का ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या तुम इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि क्या सही क्या गलत है? इस्तेमाल करने वाले कहाँ क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? तुम इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो कि सही और गलत को पहचान पा रहे हो। सही और गलत को नहीं पहचान पा रहे हो तो दिमाग का इस्तेमाल करो। कुत्ता बिल्ली बनने की क्या जरूरत है? इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। ठीक, तो ये ख्याल क्या है? ये गलत है, ये गलत है। अगर मुसलमान इसको मानेगा तो क्या हो जाएगा? काफिर। अब चाहे जितना नमाज पढ़े, रोजे रखे, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो इसको मानेगा कि फिर से जिंदगी पैदा होती है, यानी फिर से इंसान किसी दूसरे रूह में डाला, किसी दूसरे जिस्म में डाला जाता है, तो मुसलमान नहीं रह गया, वो क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। आजकल बहुत सारे मुसलमानों का भी ये ख्याल इस तरह से हो गया है, तो क्या है? वो मुसलमान अब नहीं रह चुके, वो मुर्तद हो गए। मुसलमान होकर भी क्या हो गए? वो काफिर हो गए। ठीक, तो ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का हो या जानवर का या पेड़ पालो में, ये गलत है। यानी कुछ लोग सोचते हैं ये जो रूह होती है ना, ये जो रूह होती है ये पेड़ों में समा जाती है। क्या? रूह पेड़ों में समा जाती है। ये सोचना क्या है? ये गलत है। ठीक है, और इसका मानना क्या है? कुफ्र है। और इसी को क्या कहते हैं? आवागमन। आवागमन और तनासुख कहते हैं। तो तनासुख का अकीदा हमारे इस्लाम में नहीं है, ये मुसलमानों के अलावा अकीदा है तनासुख का। ठीक है, तो जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसी का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से ज्यादा बेहतर अमल वाला कौन है। तुमको आजमाए कि तुम्हें ज्यादा अच्छे अमल करने वाला, सबसे अच्छे कर्म करने वाला कौन है। समझे? मौत क्या है? मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर मिट नहीं जाती बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मौत जो आती है ना, रूह निकल कर जाती है ना, तो ये निकल कर खत्म नहीं हो जाती। रूह तो हमेशा रहती है। हमारा हाथ कट जाए हम जिंदा रहेंगे कि नहीं? पैर कट जाए जिंदा रहेंगे ना। जिस्म तो अलग चीज है, गोश्त हड्डी खून इसी चीज का तो बना है। और हम जो हैं, सोचो हम, मैं, अंदर से जो हम हैं, कुछ जो तो हैं, तो वो हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, वो रूह है, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो रूह बाकी रहती है, जिसमें सर गल के खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें भी एक जुज होता है जो रीढ़ की हड्डी में होता है, वो बाकी रहता है, वो कभी सड़ता गलता नहीं है। रीढ़ की हड्डी में एक जुज, एक छोटा सा हिस्सा होता है जो दूरबीन से भी देखोगे ना तो नजर नहीं आएगा। ठीक, तो वो जुज नजर नहीं आएगा, वो जुज हमेशा रहता है। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसी जुज से ना फिर से इंसान को पैदा कर देगा। अल्लाह ताला के कुन हो जा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? उसी तरह खड़े हो जाएंगे जिस तरह हम पहले थे। जिस तरह आज हम हैं ना, इसी तरह हम फिर से हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला क्या कहेगा कुन हो जा, तो फिर से हम उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह हम आज हैं। ठीक, तो उसी हमारे रीढ़ की हड्डी में जो जुज है ना, जो हिस्सा है छोटे छोटे कर, उसी से अल्लाह ताला हमको फिर से पैदा करेगा। तो रूह हमारी मिट नहीं जाती है बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। आलम बरज़ख एक दुनिया है। क्या है? एक दुनिया है। जैसे एक दुनिया है, यहाँ पे इंसान रहते हैं, फिर माँ की पेट भी तो एक दुनिया है, वहाँ पे बच्चा जब पलता है वो भी एक दुनिया है। ऐसे आसमान एक दुनिया है, ऐसे आलम बरज़ख भी एक दुनिया है, एक कायनात है। वो वहाँ पे रूहें रहती हैं सिर्फ। ठीक, मरने से पहले और मरने के बाद भी, और पैदा होने से पहले रूहें वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो आलम बरज़ख है। लोग क़यामत तक आलम बरज़ख में रहेंगे, फिर जब क़यामत का मैदान, क़यामत कायम होगी,
محشر کا میدان قائم ہوگا تو پھر وہاں پہ سب کا حساب کتاب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جنت اور دوزخ میں بھیج دیا جائے گا.